Yes, sir. Can we have your motivational lines, sir? Okay, because already doing the numerology course, and this occult science attracts me. I don't know, based on my numbers or something. So this, when I saw the message, I'm really excited to join this course. Wow, very nice. Thank you so much, sir, for the great lines. Yes, Aprajya, so we can have your motivational lines as well. Ma'am, I'm a Praja. I have learned Vedic numerology from you, and I love the way you teach. So Oh, I thank you joined so much. Loshugud also. Yes, and we also know there's a secret about Aprajya, which I would want to say. Aprajya is going great with her numerological predictions, and she wanted to add value. So she has already enrolled in my Loshu Grid course, which is upcoming from Monday. And she's already a participant over there, but still she wanted to join this beautiful session. Thank you so much, Aprajya. Neha, Radhe Radhe Didi. Radhe And Radhe. myself Neha from Mehsana, Gujarat. And this Vedic numerology has changed my life personally. 6 months before, I was feeling very much depressed, and all the situations were very hard to deal with. But now I am very much confident. And this is the main reason is you, in fact, and the study, teachings, and everything is really, it's very great help. And I'm also looking forward for this professionally. So thank you for the guidance and Thank you so much. that's all. I feel so blessed and honored when I hear few good lines for myself and for the teachings which I already have inherited from my teachers and mentors and of course my parents. And I was able to share my humble knowledge with everyone. So thank you so much for the great lines. Yes, now we have Rashmi D. Ramgadia. She's already a student of my many courses. And of course, she always have been my star student, one of my very, wanted student. And she's also doing great with her predictions and with her consultations. So yes, Rashmi ji, can we have your motivational lines? What motivated you after learning so much from neuroscience with Rashmi? What motivated you to join this session today? राधे राधे, आत्मा नमस्ते। आई एम रश्मि Radhe डी Radhe. रामगढ़िया, ग्राफो न्यूमरोलॉजिस्ट। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी भी मैंने आपसे सीखा है, रोसो भी सीखा है। एंड इससे प्रिडिक्शन काफी सही होते हैं और अच्छे होते हैं। और इससे क्या होता है कि हमें बेसिक डेस्टिनी का नॉलेज होता है। उसके थ्रू हम लोग लोगों लोगों के कैरेक्टर को समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। दशा सीखे हैं, महादशा, अंतरदशा, तो उससे भी हमें काफी चीजें समझ में आ जाती है कि कौन इंसान ज्यादा एंग्जाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है, किसके पास इजी मनी आ सकता है। राहु केतु शनि की अगर दशा है तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो ये सब प्रिडिक्शन हम लोग सीख के अपनी लाइफ को और भी बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन रेमेडी के थ्रू हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को और औरों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये ऑकल्ट मुझे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ऑलवेज मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती रहती हूँ कि ऑकल्ट जैसे ग्राफोलॉजी भी सीखा है, न्यूमरोलॉजी भी है, रोसू है, वैदिक है। इसके अलावा और भी चीजें सीखे कि ना जैसे कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में या बॉस और क्लाइंट्स के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, क्या बहुत सारी चीजें हमने इससे सीखा है। Wow, तो thank you थैंक यू। so much. Thank you so much, Rashmi ji. It was great listening to you. हम और भी हमारे जो और स्टूडेंट्स ग्रेजुअली ज्वाइन कर रहे हैं हम उनसे और भी बात करेंगे वी हैव सम गेस्ट ओवर हियर सो जिनके कैमरास बंद है आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दे आर रेडी टू स्पीक और नॉट सो जिनके भी कैमरास बंद है अगर आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं यू वांट टू शेयर योर इंट्रोडक्शन विद एवरीवन सो आप लोग काइंडली अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं यस गीता जी आई वाज वेटिंग फॉर योर feedback, of course. So, Hello, Rashmi ji. I'm sorry for keeping my camera off right now. not I'll an issue at all. I later on completely put understand. it on. Because of the country change, But I Geeta ji just is want to not in tell India everyone actually. I'm also Hmm. Hanji, please carry on. sorry. No, no, I was just sharing Geeta ji since she's not in India, she's in Oman. So because of the time change also, उनके यहाँ पे बहुत सुबह है अभी. I've been Rashmi ji's batch itself. Yes, I'm sorry, my network is not supporting today, so it's slightly slow. I have been a student of Rashmi ji from her first batch itself, and she's an amazing teacher.
and I've done almost all her courses, and I'm looking forward to this Rakesh thing also, to learn more and more from her. Thank you so much, Geeta ji. Thank you so much. These kind words actually motivates me. They are a fuel to my, passion turned profession. And we have a few other guests also, Sunaina, Roshni. So welcome everyone aboard. And whoever else जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, कैमरास बंद है, कोई दिक्कत नहीं है. जब आप कंफर्टेबल होंगे, whenever you want to introduce yourself, we can always take that. So yes, friends, once again, a very, very warm welcome on today's session on unveiling the mystery of राकेश. राकेश के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर ये राकेश है क्या? राकेश है हमारे प्लैनेट्स राहु, केतु एंड शनि. जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग ऑकल्टिस्ट है, डेफिनेटली वो इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि कैसे ये 3 प्लैनेट्स हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं. सो डज दैट मीन कि बाकी के जो प्लैनेट्स है वो हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं लेके आते हैं? बिल्कुल लेके आते हैं. मगर कैसे? राकेश इज मोर इम्पैक्टफुल देन अदर्स. हाउ इट कैन चेंज योर लाइफ, हाउ इट कैन गिव अ यू टर्न योर लाइफ, आज हम जानेंगे इसके बारे में. तो इसके पहले कि हम स्टार्ट करें अनवेलिंग द मिस्ट्री, आई वुड वांट टू गिव अ हम्बल इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. आई एम रश्मि एस सराफ, an astronumerologist, consultant, coach, and trainer. And friends, it is a beautiful transformational journey for myself also, because by education I am a CMA, cost management accountant with a certificate of practice. Numbers were always my calling when I was a financial consultant then, and now when I am a numerological consultant then. So COVID was a breakthrough. It gave me a chance to convert my passion into profession. So again, coming to COVID, over there also Rahu played a very impactful role in COVID, because it was a year of Rahu. 2020 4 का साल था हमारे लिए. बहुत सारे लोगों को ब्रेक थ्रू मिला, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस मिला, एंड पीपल एक्चुअली दे वर एबल टू फाइंड आउट देयर नीश. They were able to understand कि skill-based businesses, skill-based professions actually are the new normal. Skill-based professions actually are our future. आगे जाके जब सब कुछ AI ले लेगा, मगर human intelligence को कभी replace नहीं कर पाएगा. So there's where our science comes into picture. Our science is completely based on human intelligence. It is not artificial intelligence. So yes, friends, there's where this science comes into picture, which helps millions and millions of lives. And COVID was the greatest example of it. Millions of people were undergoing stress, tension, anxiety, and whatnot. Millions of people lost their family, relatives, etc. Millions of people lost their businesses. सब चीजें बंद हो गई थी, सब कुछ ठप पड़ा था. किसने हेल्प किया उस समय में? टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया. टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट आया कि जो लोग पहले एक फोन चलाना नहीं जानते थे, दे वर यूजिंग एप्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. जिन्होंने कभी जूम के बारे में, गूगल मीट के बारे में सुना भी नहीं था, दे वर डूइंग देयर ऑफिस वर्क वाया दीज एप्स. कहाँ से आया ये सब कुछ? ये दिया हमारे प्यारे राहु भैया ने, और उनके साथ में आ गए उनके केतु भाई. तो यस, राहु एंड केतु आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जिस इंसान ने कभी अपने हाथ से उठा के एक गिलास पानी नहीं पिया था, वो पर्सन घर का पूरा पूरा काम कर रहे थे. कहाँ से आई इतनी एनर्जी उनके अंदर काम करने की? ये दिया हमारे कर्माधिपति शनि ने, सैटर्न ने. तो यस फ्रेंड्स, राहु केतु शनि अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो लाइफ का चलना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. ये इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है. यस, बिकॉज क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, एंड उसमें वी गेट अनटीम नंबर ऑफ वीडियोज ओवर देयर, एंड फ्रॉम देयर्स वेयर दीज थिंग्स कम इनटू पिक्चर कि दीज 3 प्लैनेट्स आर नॉट गिविंग यू गुड रिजल्ट्स. तो ये कब अच्छे और कब आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते, कब बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते और कब बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं भी देते, आज हम बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे. सो आई वुड जस्ट टेक अ मिनट टू शेयर माय स्क्रीन.
यस, हर नंबर कुछ कहता है और हर नंबर की अपनी एक भाषा होती है। तो हमारे राहु केतु शनि भी आज हमसे क्या कहते हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में जनरली हम सब जानते हैं, वी नो न्यूमरोलॉजी इज द साइंस ऑफ नंबर्स व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द 9 planets, दैट इज फ्रॉम 1 to 9। सूर्य से लेकर मंगल तक की जो जर्नी है वही हमारी न्यूमरोलॉजी है। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो द आर्ट ऑफ अनवेलिंग एनी पर्सनालिटी। किसी भी इंसान को हम वाया न्यूमरोलॉजी बिल्कुल एकदम उसके तह तक हम जा सकते हैं, उस इंसान के ईच एंड एवरी सेल के बारे में हम बात कर सकते हैं वाया द साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी। बट आज हमारा मेन फोकस है राकेश के ऊपर, क्योंकि इस राकेश ने बहुत परेशान किया है लोगों को। पीपल आर वेरी वेरी सैड अबाउट, आई कम अप विद सो मेनी क्वेरीज वेयर पीपल टॉक अबाउट राकेश एंड दे टेल मेरी चार्ट में 4 नंबर है तो मेरी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स है, मेरे शनि की 7.5 ही चल रही है तो मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। So I just give a humble introduction of myself. I am also a member of International Numerology Forum. And why numerology? Now this question also comes कि क्यों हम numerology से इसको समझें? Because numerology is a great tool. It is a journey. It's not a destination. It's a journey. जैसे किसी भी डेस्टिनेशन तक हम पहुंच जाते हैं तो वो जर्नी कंप्लीट हो जाती है ना। तो हमारी ये जर्नी है जिसका कोई डेस्टिनेशन अभी तक से हमको नहीं मिला। इट्स अ ऑन गोइंग जर्नी। जैसे कोई भी हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इट इज अ ऑन गोइंग जर्नी। हम कभी कोई इंसान कहते हैं कि बस मेरे को इतना ही रुपया चाहिए था, मैंने बहुत कमा लिया अपनी लाइफ में, अब मेरे को और पैसा नहीं चाहिए। क्या कोई ऐसा कहता है? बिल्कुल ऐसा नहीं कहता है। तो जब हम खर्चा करने के लिए हम नहीं बोलते हैं कि हमने बहुत कमा लिया, अब हमको और खर्चा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। सो आई फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हमने बहुत सीख लिया, अब हमें और आगे नहीं सीखना है, वी डोंट वांट टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। नो, वी कैन नेवर से दैट। सो व्हाई द नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी? जैसे कि मैंने पहले कहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नेवर इरिप्लेसेबल। तो यस, ऑलवेज ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लेज अ ग्रेट रोल। सो देयर्स वेयर न्यूमरोलॉजी, जहां से आप किसी भी इंसान के बारे में पूरी तरह से आप जान सकते हो। It is an investment in knowledge, and any kind of investment done with great precision and knowledge gives you the best results. मार्केट से आपको इंश्योरेंस भी लेते हो तो कितनी रिसर्च करके लेते हैं ना, कि वो आपको प्रॉपर रिटर्न्स दे रहा है कि नहीं, टाइम पे आपका वो मनी आपके लिए यूजफुल होगा कि नहीं। इन द सेम वे, knowledge taken, grasped in the proper manner, with proper direction and with the right mentor, gives you the best results. It develops your skill, which will never be outdated. We earn money, we help others with no age bar. इसमें कोई retirement age आपकी है ही नहीं। You understand not only your strengths and weaknesses, you all also understand others' strengths and weaknesses. And yes, that helps you make life simpler. सबसे पहले आज के बारे में हम बात करते हैं हमारे राहु के बारे में। सो नाउ व्हाट इज राहु? तो राहु और केतु, राहु के लिए अब एनीवन वांट्स टू शेयर एनी इनपुट्स रिगार्डिंग राहु? व्हाट इज एग्जैक्टली राहु एक्चुअली है क्या? क्या समझते हैं आप लोग राहु के नाम से? We will keep it a very very interactive session so that we can gain more benefits from everyone's experience. Anyone? कोई शेयर नहीं करना चाहता है कि राहु है क्या? राहु happens to be the planet of the number system which is regarded by the number 4, एंड जहां हमारी चार्ट, बिकॉज हम सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम सब उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की डील्स देखते हैं, एंड वी ऑल नो कि वहां पे राहु है तो पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन, राहु है तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बट डिड यू एवर थिंक, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी चार्ट में राहु नहीं होगा तो आपके पैसे जो आप कमा रहे हो उसको जो रोकने की स्ट्रेंथ होती है ना वो कम हो जाती है। वाई? बिकॉज राहु सिर्फ सर है, राहु सिर्फ सर है, सर में आते हैं आइडियाज, वो ब्रेन है, ब्रेन 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 में आइडियाज नहीं आएंगे तो आप पैसे तो कमा लोगे बट यू डोंट नो व्हाट टू डू फॉर दैट मनी। आपको क्या करना उस पैसे का? अगर मैं आपको आज के दिन में 1 करोड़ रुपए दे दूं, नेहा को मैं 1 करोड़ रुपए दे दूं, हम बोलूंगी नेहा आपको उसको आज की आज ही खर्चे करने हैं, तो आप कितने ड्रेसेस ले लोगे, कितनी ज्वेलरी ले लोगे, क्या कर लोगे आप उसका? कितने एक दिन में कहाँ कहाँ घूमने चल जाओगे? You wouldn't be able to spend that money unless you have those innovative ideas
कि हम कैसे इस पैसे को यूज कर सकते हैं. So there's where Rahu comes into picture because it's a great energy. Rahu, Ketu, Shani, these are the form of energy. These are actually the tools. And tools को अगर हमें properly use करना आता है, then only can we make the most of these tools. हम सब घरों में चाकू यूज करते हैं, नाइफ यूज करते हैं, यस. नाइफ से आप फ्रूट्स काट सकते हो, फल काट सकते हो, यूजिंग इट और टू अ गुड एनर्जी. सब्जी काटते हो, आप भोजन पकाते हो उससे. नाइफ अगर नहीं है तो क्या आप बिना नाइफ के काम कर सकते हो? फल तो चलिए ठीक है, बाइट करके खा लिए, लेकिन कुछ ऐसे फल है जो छील के खाने वाले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पपाया, खरबूजा, आप कैसे खाओगे उसको? हम आदि मानव की तरह अपने नाखून तो यूज नहीं करेंगे ना छिलने के लिए. हमें चाकू चाहिए. यस. उसी चाकू से कोई इंसान जो डिप्रेशन में या फिर जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, वो लोग उसको यूज करके किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, किसी को हार्म कर सकते हैं. तो क्या था वो चाकू? तो वही है, इट्स अ टूल. किसी ने उसको बेनिफिट्स के लिए यूज किया, उसने सबका पेट भर दिया उस चाकू से, सब्जी काट के, भोजन पका के या फ्रूट्स काट के सबका पेट भर दिया. तो किसी ने उसका यूज किया किसी की जान लेने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए. सो यस, राहु इज अ टूल. वो आपके देता है बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज. नाउ इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन. वो इनोवेटिव आइडियाज से वो जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, उसको कैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस किस फील्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड एग्जैक्टली वो कौन सी फील्ड होनी चाहिए जिसमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए. वो बताता है उनका डेट ऑफ बर्थ, द कॉस्मिक डीएनए विच दे हैव बीन ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स. जिस दिन वो धरती पे आए थे, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, that's their cosmic DNA. The DNA they get from their parents, of course, yes. But it's a cosmic DNA which has been given to them by the universe. सो जो परमपिता परमेश्वर ने आपको दिया है वो खराब कैसे हो सकता है? ठाकुर जी ने हमें बहुत अच्छा दिया, बट वी आर नॉट यूजिंग इट, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर आवर बेस्ट. यस. तो इनोवेटिव आइडियाज कौन देगा आपको? आपके पैसे कमाने की कैपेबिलिटी के साथ उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करने के जो इनोवेटिव आइडियाज है, वो कौन देगा आपको? राहु देगा. बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी विच नीड्स टू बी चैनलाइज्ड विद ग्रेट प्रेसिशन. आपको कौन से जगह पे वो पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है जहां पे अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट करो तो यू गेट गुड रिजल्ट्स? आपको कब आएंगे वो पैसे? कैसे कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, बताएगा आपको आपकी न्यूमरोलॉजी की नॉलेज. So why numerology? Again, it comes into picture. So why should you have the basic knowledge of numerology? That too in the proper frame, proper with proper mindset. There's where it becomes very important for everyone to understand their basics. हम हर छोटी चीज के लिए डॉक्टर के पास तो नहीं चाहते हैं ना. वी अंडरस्टैंड आवर एनाटॉमी ऑफ आवर बॉडी बाय आवरसेल्व्स. हमें पता है कि हमारा थ्रोट ससेप्टिव है टू एलर्जी. सो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ चिल्ड वाटर और एनी कोल्ड ड्रिंक्स कि हमारा थ्रोट पकड़ लेगा. सो वी अंडरस्टैंड द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आवर बॉडी. इन द सेम वे यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक एनाटॉमी ऑफ योर नंबर सिस्टम ऑल्सो. राहु के बाद हमारे पास में आता है केतु. राकेश का के ए. आर ए पे हमने बात की. अब आता है हमारे पास में के ए. के ए क्या है? के ए इज द बॉडी ऑफ द राहु. सो हाउ मेनी ऑफ यू ओवर हियर नो अबाउट द स्टोरी ऑफ राहु केतु? क्या राहु केतु हमेशा से राहु केतु थे कि वो बाद में राहु केतु बने? उसके पहले वो कुछ और था? जिसको जिसको भी इस स्टोरी की जानकारी है, प्लीज आप अपना हाथ उठा सकते हैं, या कौन नहीं जानता वो अपना हाथ उठा सकते हैं. Everyone knows? Okay, great. Great to know this. Since all of us know about this story, we know राहु केतु की जो ओरिजिनल बॉडी थी, इट वॉज अ दैत्य स्वर भानु. स्वर भानु यूज टू बी अ वेरी वेरी स्पेक्यूलेटिव पर्सन, वेरी रिसर्च ओरिएंटेड, एंड उनको बहुत दूरदर्शिता जिसे हम कहते हैं ना, वो थी. उसने पहले ही ये चीज समझ ली थी कि उसको अमृत नहीं मिलने वाला है. उसने क्या किया? वेश बदला एंड देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया. सो देयर कम्स द रिस्क मैनेजमेंट. यस, एंड देयर कम्स अ स्पेक्यूलेटिव थिंकिंग. तो वो आता है हमारे पास में केतु से भी. वेश तो बॉडी ने बदला ना. तो केतु इज द वन जो समय के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है.
वेश बदलना इज नॉट ऑलवेज द फिजिकल वेश बदलना, एक समय के अनुसार चेंज होना, समय के अनुसार चीजों में अडेप्ट हो जाना, समय के अनुसार उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, दैट क्वालिटी वी गेट फ्रॉम केतु. सो अगेन केतु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. केतु देता है आपको किसी भी चीज में अडेप्ट करने की, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की क्वालिटीज. बिकॉज केतु अगेन हैपन्स टू बी द कारक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द कारक ऑफ ऑकल्ट. So Ketu helps you accept the process of life as life comes to you. That's why Ketu again becomes very, very important for us. किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत चीजों में बहुत ज्यादा ऑप्शंस ढूंढते हैं, दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर दे हैव. अब उनको एक ड्रेस भी लेना है, तो एक ड्रेस के लिए दे वुड हंट, दे वुड रिसर्च ऑन 10 ऑप्शंस, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन. केतु वालों के साथ में एक खास क्वालिटी होती है, वो लोग ऑनलाइन में ज्यादा बिलीव नहीं करते. दे वुड गो फिजिकली एवरीवेयर एंड दे वुड ट्राई दोस ऑप्शंस, रिजल्टिंग इनटू अ वेस्टेज ऑफ टाइम. क्यों? ये ऐसा कब होता है? नॉट ऑल केतु पीपल डू दैट. ये ऐसा कब होता है? ये ऐसा तब होता है जब उनका केतु उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता है. So we'll be coming to that when these planets are not giving you good results and when are they not giving you good results. मगर अभी हम बात कर रहे हैं कि वो एक्चुअली क्या रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में. So Ketu gives you that acceptance. Why acceptance? Because Ketu again is a very spiritual planet. It raises your intuition to the next level. तो अगर आप शेयर मार्केट भी खेल रहे हो तो आपको इंट्यूशंस की जरूरत वहां भी है. डोंट एवर थिंक कि स्पिरिचुअलिटी में अगर जो बंदा है उसी को इंट्यूशंस की जरूरत होती है. डोंट एवर थिंक दैट. जितने भी रिस्क वाले काम होते हैं वहां पे द रोल ऑफ इंट्यूशन प्लेज अ मेजर थिंग ओवर देयर. हर्षद मेहता ऐसे ही तो हर्षद मेहता नहीं बन गया ना. इंट्यूशंस बहुत अच्छे थे उसके. कितना पहले उसने सोचा, कितना पहले उसने कंसेप्चुअलाइज किया कि मैं शेयर मार्केट को इस तरह का एक रूप दे दूंगा. यस. सो केतु वहां पे ऐसा काम करता है. राहु ने अगर सोचा, राहु ने कंसेप्चुअलाइज किया, तो उसको करेगा कौन? दे वांट अ बॉडी फॉर दैट. दैट बॉडी इज केतु. यस. नाउ वी कम टू शनि, सैटर्न. जैसा कि मैंने कोविड में कहा था, ऑनलाइन कल्चर राहु लेके आया. केतु ने उसमें रिसर्च ऐड करी कि यस अब इसमें हमारे पास ये सब ऑप्शंस है, हम इससे ये बेनिफिट्स ले सकते हैं. शनि का रोल अब वहां पे कहाँ पे आया? अक्सर हम लोगों को सुनते हैं कि हमारी तो शनि की 7.5 चल रही है, हमारी तो वाट लगी हुई है. अक्सर हम लोगों से ये बातें सुनते हैं. बट वाई? क्यों वाट लगी हुई है? शनि ने ऐसा क्या किया आपका? शनि हैपन्स टू बी अ वेरी वेरी एथिकल प्लैनेट. बहुत हिसाब से चलने वाला नंबर है. बहुत हिसाब से चलने वाले लोग होते हैं लोग. बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज का, बिकॉज दे आर द कंसिडर्ड एज अ जज. जज की तरह हम लोग इसको कंसिडर करते हैं. शनि गिव्स यू द पावर टू वर्क हार्ड, वर्क एथिकली, वर्क इन द राइट डायरेक्शन. शनि गिव्स यू द पावर टू बी इंडिपेंडेंट. कोविड में क्या हुआ था? स्टाफ नहीं था, मेड्स नहीं थी, लोगों ने अपने हाथ से, तो क्या इतना लंबे समय तक कोविड चला, तो उस समय तक अगर हम मेड्स पे डिपेंडेंट होते तो हमारे घर में तो पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रैश कर जाता. सो शनि वाज द वन विच केप्ट मूविंग पीपल फिजिकली. लोग तो गिद्दे में पड़े पड़े तो बीमारी लग जाएगी ना, कोई फिजिकल मूवमेंट ही नहीं है. Shani also helped people to become minimalist at that time. Because Shani, people ruled by Saturn, they are also very, very grounded, very, very down to earth, minimalist. वहाँ चीजें उस समय हमको सब चीजें बहुत ज्यादा सोच समझ के यूज करनी थी. We had limited resources, be it food, be it finance, be it कपड़ा लत्ता, be it ज्वेलरी को तो भूल ही जाओ. सबका ज्वेलरी तो हाथ में, एक हाथ में बेलन और एक हाथ में झाड़ू होके रखा था, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. यस. सो शनि एक्चुअली टॉट अस कि जो है उसमें खुश रहिए
एंड अपना काम अपने आप से करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी इंडिया फॉरेन कंट्रीज का कल्चर को अडेप्ट कर ले रहा है, वुडंट बी गेटिंग होम हेल्प अगेन. So that's how our Rahu, Ketu and Shani, they actually play a very, very crucial role in our life. तो इसके ऊपर हम आए अगर, तो कैसे कैसे हमें ये चीजें अफेक्ट करती है, ये हमने समझा कि वो ब्रेन है तो वो सोचता है. तो आज से 100 साल पहले किसी राहु बुद्धि वाले इंसान ने सोचा होगा कि हम कोई एक ऐसा ऐप बनाएं जिसमें पूरी इंडिया ग्लोबली वो कनेक्ट हो जाए एक साथ में. जैसा कि हम आज जूम पे कनेक्ट होते हैं, गूगल मीट पे कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे हमारे पास अभी तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं. किसी ने बहुत पहले, जैसे पहले वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ, पहले फोन स्टार्ट हुआ, फिर वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ. वीडियो कॉल में 1-to-1 कॉल्स होते थे. यस. एंड उसके बाद वी हैड जूम. सो मेनी ऑफ अस आर कनेक्टेड टुगेदर. वी आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द globe. Not only India, we have people from different parts of the globe. So we all are connected under single roof. We are able to interact with each other at the same go. तो ऐसा तो कौन कर सकता है? ऐसा तो हमारे ठाकुर जी ही कर सकते थे, जो एक साथ में वो बहुत सारे लोगों के दिल में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक साथ विद्यमान है. तो राहु ने क्या किया? क्या ये राहु यहाँ पे छोटे भगवान जी का काम नहीं कर रहा है कि एक साथ हम सबको देख पा रहे हैं? आइडियली तो हम एक साथ इतने लोगों को नहीं देख सकते ना, जो अलग अलग जगह पे सब बैठे हुए हैं. तो इतनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी हमें किससे मिली? हमें राहु से मिली. यस. तो इट इज अ टूल इफ यू यूज इट प्रॉपरली. एक फोन ही था कोविड में जो पूरी कोविड में हमारी लाइफ को चालू रखा. तो इफ यूज प्रॉपरली इट इज गिविंग यू गुड रिजल्ट्स. It is giving you finance related options. It is giving you so much of education, knowledge. And if used in the wrong way, we can use it for unhealthy content, for watching unhealthy content leading to mental issues, anxiety and what not. तो अब से कोई भी अगर कहे हमसे राहु हमें स्ट्रगल्स दे रहा है लाइफ में, राहु हमें प्रॉब्लम्स दे रहा है, थिंक ट्वाइस उनका राहु कैसा प्लेस्ड है. राहु स्ट्रगल्स कब देते हैं, या कोई भी प्लैनेट राहु केतु शनि में से वो स्ट्रगल्स कब देते हैं, मैं उसके बाद ऊपर आपको आती हूँ. जैसे क्या होता है कि जब स्वर भानु ने वेश बदल के जब वो दूसरे लाइन में जाके बैठा, श्री हरि विष्णु ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसके बोल में उसको अमृत परोस दिया. एंड वो जैसे ही अमृत का पान करने लगा, ये सारी एक्टिविटी सूर्य एंड चंद्रमा देख रहे थे. तो उन्होंने तुरंत श्री हरि को कंप्लेन करी कि ये तो राक्षस है और ये आके हमारी लाइन में बैठ गया है और ये धोखे से अमृत ले लिया है. वो श्री हरि अपने वेश में आके सुदर्शन निकाल के उसका असैसिनेशन कर दिए, लेकिन तब तक एक घूंट अमृत की उसके गले के नीचे जा चुकी थी, रिजल्टिंग कि उसको वो अमर हो गया था. बॉडी को तो वैसे छोड़ नहीं सकते थे, असैसिनेटेड बॉडी को, कि वो अमर थी तो वापस जुड़ जाती. तो उन्होंने क्या किया, उसको अपोजिट डायरेक्शंस में फेंक दिया. ये सारा असैसिनेशन हुआ किस लिए? राहु की ब्रेन बड़ी शार्प होती, पिछले जन्म की भी सारी बातें उसको याद रहती है, उनके लिए ऐसे कहा जाता है. यस. तो उनका ये असैसिनेशन हुआ था बिकॉज ऑफ सूर्य एंड चंद्रमा. तो वो अपने टाइम पे सूर्य एंड चंद्रमा को राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं. तो वो कब अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते? जब उनका फ्रिक्शन होता है सूर्य एंड चंद्रमा के साथ में. पीपल रूल्ड बाय सन एंड मून, उनके साथ जब फ्रिक्शन में वो आते हैं, उनके प्लेसमेंट जब गड़बड़ हो जाते हैं उनके साथ में, दोज पीपल डू नॉट एक्सपीरियंस गुड रिजल्ट्स इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु. So there's where this comes into picture. So how do we understand this? कब होगा ये फ्रिक्शन उसकी लाइफ में जिसकी चार्ट में वो प्लेस्ड है? अगर चार्ट में नहीं भी है, दशाओं में कभी ना कभी तो आएगा, ट्रांजिट में, क्योंकि सारे प्लैनेट्स तो सूर्य के आजू बाजू घूम रहे हैं, अपने सर्कल पे अपनी एक्सिस पे रोटेशन कर रहे हैं. तो कभी ना कभी तो ट्रांजिट में आएगा ही. सो कब आएगा वो ट्रांजिट में? आपको बताएगा हमारा न्यूमरोलॉजी वाया लोशु ग्रिड और वैदिक न्यूमरोलॉजी. So we understand things so clearly over there. We understand things so clearly over there. It's really amazing. Yes. So if we come to Saturn, Saturn के साथ अब क्या होता है? Saturn actually is the illegitimate son of Surya, Surya Putra Shani. Saturn is an independent planet, very, very independent. So these people, they know how to do
how to grow up independently. So they can manage their finances well. So if you don't have a number 8 in your chart, then yes, you are a spendthrift. आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको कहाँ रुकना है. लेकिन सैटर्न की एनर्जी अगर बहुत एग्जैगरेटेड होती तो पर्सन कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिमलिस्ट. सब कुछ होते हुए भी द पर्सन विल बिकम अ मिनिमलिस्ट. उनसे पैसे खर्चे ही नहीं होंगे. सीधी भाषा में हम उनको कंजूस कह सकते हैं. या तो वो बहुत ग्रीडी हो जाएंगे या फिर वो बहुत कंजूस हो जाएंगे. सो ऑल दीज आर एक्चुअली एनर्जीज विच नीड्स टू बी बैलेंस्ड. अगर ये एनर्जीज हमारी बैलेंस्ड होती है, अच्छे रिजल्ट्स देती है. एनर्जीज हमारी बैलेंस्ड नहीं होती है, तब वो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती. तो दे हैव टू बी बैलेंस्ड विद द सपोर्ट ऑफ रेमेडीज. So yes, friends, I think I have I've been able to explain the mystery of Rahu, Ketu and Shani to everyone. आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा. तो राहु केतु एंड शनि को हम राहु केतु शनि नहीं कह के हम उसको ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जोड़ सकते हैं. ब्रह्मा जी ऑल्दो ही इज द क्रिएटर बट ही इज द फॉलोअर ऑफ श्री हरि. श्री हरि के दिमाग में सारी आइडियाज आती है. कुछ भी प्रॉब्लम होता है, एवरीवन गोज टू श्री हरि विष्णु. So Sri Hari Vishnu happens to be the Rahu and Brahma is the Ketu for him. He is the executor. And Mahesh, जो शांति से एक जगह पे विराजमान है, he is the minimalist. उनके तन पे पूरे से कपड़े भी हम नहीं देखते. सांप वगैरह उनके गले में लटके रहते हैं एकदम. एंड वो एकदम कहाँ बैठते हैं? शमशान में. मिनिमलिस्ट. मगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी दे गो टू महेश. समुद्र मंथन से विष निकला, किसने पान किया? महेश ने पान किया. गंगा जी को किसको धारण करना था जटा पे? महेश ने धारण किया. इंडिपेंडेंट, वेरी वेरी इंडिपेंडेंट. यस, सैटर्न. सो यस, आज से एवरीवन वुड चेंज देयर कंसेप्शन रिगार्डिंग राकेश एंड दे विल डेफिनेटली बिकम वेरी वेरी ओपन टू दीज एनर्जीज. एनर्जीज हमेशा अच्छे से हम यूज करते हैं. वी डेफिनेटली गेट द मोस्ट ऑफ इट. यस. सो इसको हम कह सकते हैं एक शॉर्ट में वी कैन टेल इट आइडा. आइडा क्या होता है? ए से अटेंशन. सबसे पहले पे अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. ट्राई टू कनेक्ट इट विथ योर डेट ऑफ बर्थ विच इज योर कॉस्मिक डीएनए, बिकॉज योर डेट ऑफ बर्थ होल्ड्स अ रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ. बिकॉज इट्स योर कॉस्मिक, इट्स योर ओन कॉस्मिक डीएनए. उस डेट पे भले ही और करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन उस डेट पे आप तो अकेले ही पैदा हुए हो ना. तो वो आपके लिए बहुत प्रेशियस है. डेट ऑफ बर्थ को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो. आप अपना नाम रेक्टिफाई कर सकते हो, फोन नंबर चेंज कर सकते हो, बट कैन यू एक्चुअली चेंज योर डेट ऑफ बर्थ? नो, वी कांट. इट्स अ फिक्स्ड डेटा. So your date of birth holds the key to success for everyone. Then comes the interest. After you have paid the attention, then comes the interest. And then comes a desire for a change. Then comes a desire for acceptance. Then comes a desire for rising high in life. And of course, then we take an action कि yes, अब मुझे करना है. अब मुझे अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देनी है. So when you start believing in ideas, when you start believing your own free will, when you start believing in your own interest, yes, of course, you give a new direction to your life. एक पर्सन जो 25 to 30 years का है, वो बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, उनकी एक बहुत अच्छी पैकेज है. ऑफ कोर्स दे लुक फॉरवर्ड टू ग्रो इन लाइफ. लेकिन बट एक समय के बाद जब उसकी दे आर क्लोज टू द रिटायरमेंट एज एंड जब वो लाइफ की भागदौड़ से बिल्कुल थक जाएगा, उसको लगेगा मैं इतना काम करके जितना मैं कमा रहा हूँ उतना उतना तो मैं खर्च भी कर दे रहा हूँ. मेरा स्टैंडर्ड, आई एम सेट इन माई लाइफ, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैंने अच्छा बना लिया है. आई हैव गैदर्ड इनफ वेल्थ. लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? देयर आर सम पीपल हु एक्चुअली वांट टू कीप गोइंग टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ देयर लाइफ. So here's the solution: skill-based professions. So numerology is the answer to that. आपका जब मन नहीं करेगा तब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहोगे औरों से. So there's where you have this knowledge of numerology. We have different modalities of numerology. You can choose from anyone. So there's where you have the knowledge of numerology. So of course, yes, you know
how to help people and how to help yourself. We understand कि कैसे हम चीज़ों को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, and we give a new dimension to our life. So yes, for numerology we say it works like a med department. मौसम विभाग की तरह ये काम करता है. होने वाली बारिश को हम रोक नहीं सकते, तो यहाँ बारिश से मतलब आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, आपके लाइफ की जो इवेंट्स है, वी कांट स्टॉप देम फ्रॉम हैपनिंग, बट डेफिनेटली यस वी प्रोवाइड देम अ गाइडेंस वेल इन एडवांस कि किस समय आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किस समय आपको करियर का ऑप्शंस लेना है, किस समय आपको जॉब चेंज करना है, किस समय पे आपकी शादी में क्या होना चाहिए. आपके घर में ये चीजें हमें आती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में आप लिटिगेशन होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है, तो यस फील फ्री टू डू द रेमेडीज. सो जैसे मौसम विभाग बारिश को नहीं रोक सकते हैं, बट दे कैन ऑलवेज गाइड अस कि बहुत जोर की बारिश होने वाली है, छाता लेके जाना. बहुत ज्यादा साइक्लोन टाइप की बारिश होगी तब रेनकोट पहन के जाओ, या फिर छाता और रेनकोट दोनों लेके जाओ, या फिर आइला अम्फान आने वाला है, घर से बाहर ही मत निकलो वरना उड़ जाओगे और कहीं के कहीं मिलोगे फिर. There's where we come into picture. So yes, friends, I'm coming up with a course in Loshu Grid Numerology from Monday, and we are open to any kind of subscriptions for today. So anyone who is interested to join, of course, then of course we have the options. आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं. मंडे से सेशन शुरू हो रहा है. आज के लिए एक स्पेशल ऑफर है. इफ यू जस्ट ब्लॉक, आप 1,000 रुपए देके उसका चार्जेस 25,000 है. आप 1,000 रुपए देके एक सीट ब्लॉक कर सकते हो. एंड इफ यू पे विद इन 24 hours, so you also get the chance to pay into installments, in 2 installments. And even if you don't want to go for the course, you don't want to go for the consultation, at least I believe you have taken something from this session today. So I would also invite people to share their experiences on this session. आपने यहाँ से क्या सीखा और आपको ये सेशन कितना fruitful लगा? It would definitely be a boon to us. So anyone who would want to share their experience, kindly they can raise their hands. Yes, KPG, we can have your feedback, please. Sorry, just one एक question पूछना था कि how long this course will run and what will be the timing? Yeah, this course will be for 15 to 17 classes, and it would be twice a week. So it would be for around 1.5 months. तो टाइमिंग क्या मतलब इंडिया टाइमिंग क्या रहेगा? Yeah, Whether it will India suit me or timing. not? Yeah, we are very flexible in timing, but prima facie the timings would be the same, 12:30 in the afternoon. But on students' request, we have a flexibility of the time change also. But they are subject to condition again. Okay, so Yes. at this stage, is it weekend or weekdays or Weekday, Monday and Tuesday. Monday and Tuesday? Okay. Yes. No, Generally, definitely this हाँ जी. this session was very useful. Definitely, no Thank you so doubt. much. Because we heard about Rahu, Ketu, and Shani, we learned in the numerology, but you clarified more because we never heard the name of Rakesh. So that's really Yes. good thing. And you've given a good insight. So we are very much fortunate to have this class. So thank you very much. Thank you so much, KPG, for joining and adding so much of value to the class. It indeed means a lot for me. Yes, Neha. So we have. Thank you. And sorry, I'll message you about this joining the class later on. Yeah, sure. Thanks. Please take your time. Yeah, please do. Thanks. Ma'am, I was also saying the same thing that I will be informing you about this class. And one thing also that मतलब I was some or the other kind मतलब थोड़ा सा मेरे को हमेशा डर लगता था ये राहु से, बट दिस आज का सेशन से बहुत अच्छा समझ में आया, क्लैरिटी मिला है और ज्यादा. एंड अगर हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्या इसका पहले मतलब न्यूमरोलॉजी का क्लासेस का होना जरूरी है, मतलब इस क्लास के नहीं, लिए ये वाली क्लास को हम बेसिक से ही कराएंगे. यू हैव अ न्यूमरोलॉजी का बैकग्राउंड
or not, but it would be a class from the fresh from scratch to the professional level का class रहेगा ये. Okay. So even a person who is a fresher जिनको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता है, जी जी. उसी हिसाब से हम इस क्लास को शुरू कराएंगे. तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहूंगी. Like we have the characteristic of numbers of all the 9 numbers. We also have is एक मिनट है. Yes, ma'am. मैं आप लोग को बताती हूँ. आई जस्ट शेयर द सिलेबस स्लाइड मगर वो अभी आ नहीं रहा है. जस्ट अ मोमेंट. Yeah, it is the in-depth course for basic, intermediate to advanced to professional levels. So we understand the origin and significance of numbers. We study all the 9 numbers 1 to 9. We have the positive and not so positive numbers कि कब कोई नंबर बहुत पॉजिटिव होता है और कब कोई नंबर वही नंबर जब वो कैसा आता है तब वो आपको अच्छी क्वालिटीज नहीं देते हैं. फॉर एग्जाम्पल राहु गिव यू ग्रेट आइडियाज, लेकिन आपका राहु कब आपके दिमाग में उल्टी बुद्धि देने लग जाएगा आपको. तो किसी का राहु खराब है वो सबसे पहले हमें समझ में आता है उस इंसान का फोन बार बार चेंज होता रहता है. कोई पर्सन अगर अपना फोन बार बार चेंज करता है या उनके हाथ से फोन गिरा और टूट गया, फोन चोरी हो गया, खो गया, उनका राहु 100% खराब है. सेकंड इंडिकेशन, उनके घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा खराब रहेगा. एक इंसान के घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी ट्यूबलाइट खराब हो गया, कभी एलईडी खराब हो गया, फिर वॉशिंग मशीन खराब है, गीजर खराब है, लैपटॉप खराब है, फोन खराब है, मतलब कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक हमेशा खराब रहेगा, राहु खराब है. तो उस हाउ डू वी चेक दैट? उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल किसके नाम पे आता है, तो वो उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा. वेयर एज उन घर में रहने वाले लोगों को भी इम्पैक्ट करेगा, और उस इंसान को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा जिनकी राहु की महादशा या अंतरा चल रहा होगा. Since most of you are numerologists over here, so understand these languages like महादशा, अंतरदशा etc. इसलिए मैंने ये सब वर्ड्स यूज किए. तो उनको बहुत ज्यादा वो चीजें इम्पैक्ट करेगी. जैसे होता है ना क्लास में 2 बच्चे बदमाशी कर, एक तीसरा बच्चा शांति से साइड में बैठा है, टीचर आएगी तीनों को उठा के ले जाएगी प्रिंसिपल के रूम में कि चलो तुम भी. सेम थिंग हैपेंस इन द राहु की महादशा. साइड में भी अगर आप बैठे हो तो इसलिए हम लोग बोलते हैं भाई तुम्हारा राहु आया हुआ, कहीं 2 जन झगड़ा कर रहे हो साइड में भी खड़े मत होना, पुलिस आके सबसे पहले तेरे को ही उठा के लेके जाएगी, तो लिटिगेशन के योग बन रहे हैं. मतलब राहु कैन गिव यू एज सीरियस प्रॉब्लम्स एज लिटिगेशन टू एक इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होना. तो कभी घर के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स को गाली मत देना, खराब आया था. सोचो बड़ा प्रॉब्लम छोटा में कट गया, लिटिगेशन तक बात जा सकती थी. राहु भैया ऐसा ही है, उसको गाली गलौज मत करना कभी भी. ठीक है. देन वी हैव द ऑफ कोर्स द लोशो ग्रिड. मैं आप लोग को लोशो ग्रिड दिखाती हूँ कि वो कैसी होती है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक ग्रिड बट अगेन इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सी एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस जिसको समझने में पढ़ने में हमें टाइम लगता है. सो वी हैव एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड इन द नेम ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी. Vedic numerology also people find it very complex because the calculations over there are really complex. So we have numerology simplified in the name of लोशो ग्रिड. लोशो ग्रिड को बिल्कुल भी आप चाइनीज न्यूमरोलॉजी समझने की भूल मत करिएगा. ये बिल्कुल हमारी इंडियन न्यूमरोलॉजी है, पाराशर ऋषि के द्वारा बनाई गई, क्योंकि ये हमारा लक्ष्मी यंत्र है. ये जो है हमारा लक्ष्मी यंत्र है. ये लक्ष्मी यंत्र एक कछुए के ऊपर वो नदी के पास में राजा को मिला था जब उस नदी में बहुत बाढ़ आती थी, इसलिए वो चाइना में उसका उद्गम हुआ था, इसलिए बोल के वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से फेमस हो गया. मगर ये साइंस पूरी तरह से, इसका कॉपीराइट इंडिया के पास ही, भारत के पास ही इसका कॉपीराइट है. हमारे ऋषि पाराशरी ने इसका उद्गम किया था, उन्होंने बनाया था इस साइंस को. तो जो कहते थे कोविड में पीपल यूज्ड टू से ना ये तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी कैसे प्रेडिक्शंस देता है. नहीं, बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस देता है. वैदिक न्यूमरोलॉजी में द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन विच वी हैव इज ऑफ 8 डेज. जब सूर्य की प्रत्यंतर दशा आती है, हमको पता है 8 दिन इनका सूर्य का है, तो 8 दिन क्या सूर्य ही रहेगा उनकी चार्ट में? उस 8 दिन में और प्लैनेट्स नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे. तो उस 8 दिन में और कौन कौन सा प्लैनेट उनकी चार्ट में ट्रांजिट कर रहा है, ये क्या तो हमें एस्ट्रोलॉजी बताता है, क्या हमें लोशु ग्रिड बताता है. तो जिनके पास एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, लोशु ग्रिड इज अ बून फॉर देम. आप हर दिन का प्रेडिक्शन वहां से कर सकते हो कि आज मैं सोचूंगी कि आज मेरा सेशन है, तो मैं पहले ही चेक कर लूंगी कि भाई मेरा सेशन कैसा होने वाला है. आज अच्छी एनर्जी आ तो रही है ना यहाँ पे.
तो ये वाला प्लैनेट मेरे लिए पॉजिटिव है कि नहीं है, तो मैं पहले ही चेक कर लूंगी। आई डू, अगर मुझे किसी पार्टी के पास जाना, किसी का ऑफलाइन कंसल्टेशन, एंड आई नो द पर्सन इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी, और उसी दिन जाना है, सपोज मेरा फिक्स्ड हो गया है, एंड आई एम फाइंडिंग कि एनर्जीज मेरी इतनी फेवरेबल नहीं है, मैं क्या करूंगी? आई डू सम रेमेडीज फॉर माई सेल्फ सो दैट आई कैन मेक द मोस्ट ऑफ दैट डे. So there's how numerology helps us in daily activities. तो हम इसमें बहुत सारी चीजें और भी सीखते हैं. वी अंडरस्टैंड द डिटेल वाइज डिस्कशन ऑन द डेट्स 1 to 31. हमारा जो महीना होता है 1 से लेकर 31 तारीख तक का होता है, उसमें भी अंडरस्टैंड इन डिटेल्स. डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि जो जन जैसे 1 तारीख को बॉर्न हुआ वो भी सूर्य, 10 को बॉर्न हो रहा है वो भी सूर्य, 19 को बॉर्न हो रहा है वो भी सूर्य, 28 को बॉर्न हो रहा है वो भी सूर्य है. तो ये चारों सूर्य में क्या सेम क्वालिटीज रहेगी? वी नो नहीं. 19 वाला बहुत गुस्से वाला होगा, वेरस 28 वाला ठंडा सूर्य होगा वो. वी नो दिस. इसी तरह से हम इसमें पूरा समझेंगे. 4 और 8 के बारे में जैसे मैंने आप लोग को डिटेल से पढ़ाया, और डिटेल से पढ़ाऊंगी. 4, 8, 7 राकेश के बारे में. दशा सिस्टम है ही हमारे यहाँ पे भी. यहाँ पे हम उसको दशा सिस्टम को बोलते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स. फ्यूचर ट्रेंड्स बोलते हैं. तो वहां से हम बहुत सारी चीजें और सीख पाते हैं कि भाई किस इंसान कौन सा इंसान अथॉरिटेटिव होगा, किसको बहुत हड़बड़ी रहेगी हर चीज की, उनका एक्शन प्लान बहुत स्ट्रांग है, किसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, कौन थोड़ा सा सनकी टाइप्स होगा, मेंटल बोलते हैं ना जिसको, मेंटल होगा, किस बच्चे के अंदर में डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी है, कौन मुकेश अंबानी बन जाएगा. मुकेश अंबानी का जो चार्ट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो तो बहुत लोगों के पास है ना वैसा. सारे तो मुकेश अंबानी नहीं बने ना, तो वही क्यों बन गया ऐसा. और राहुल गांधी के पास भी वो एक तो रॉयल फैमिली में बॉर्न होने के बाद भी वो पप्पू क्यों कहलाया जाता है. वी अंडरस्टैंड बाय न्यूमरोलॉजी, राइट. जैसे मैंने कहा लिटिगेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे कि कब किसको क्या हो सकता है. अफेयर तो बहुतों के होते हैं, कन्वर्ट तो सारे नहीं होते हैं. मैरिज कंपैटिबिलिटी अगेन. अब जैसे एक ही घर में 4-5 जन तो सबके ही रहते हैं. इन लॉज है और 4 जन खुद है, तो 4-5 जन तो 6 जन, एक स्टाफ भी है. तो अचानक से आपका स्टाफ जब आया था बहुत अच्छा था या अच्छी थी, और अचानक से 2-3 साल के बाद उसको कुछ हो गया. अब वो बात नहीं सुन रहे. हम लोग बोलते हैं पुराना हो गया इसलिए हो गया. नहीं, दशाएं बदल गई उसकी भी. दशाएं बदल गई, एंटी दशा आ गई आपसे. आप सूर्य हो, वो सैटर्न है, लेकिन उस समय 5 भी आया हुआ था तो बैलेंस था. अब 5 गया, 5 का दशा कंप्लीट करके चला गया, अब 6 आ गया. अब उसको भी आराम चाहिए, अब वो काम नहीं करेगा. हम लोग बोलते पुराना हो गया. पुराना पुराना कुछ नहीं हुआ. हम भी तो ऑफिस से पुराने हो जाते तो सीनियर हो जाते. ज्यादा काम करना पड़ता, ज्यादा जिम्मेदारी उसकी, वो क्यों काम नहीं कर रहा. उसी तरह से आपके मदर इन लॉ अचानक से आई है बाहर से, उनको आपके से प्रॉब्लम हो गई, या फिर बहुत ज्यादा प्यार हो गया, क्यों हो गया. यू गेट एन आंसर. इस तरह की बहुत सारी चीजें वी गेट फ्रॉम दिस. मैरिज, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग. जैसे मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, घर में पूरी तरह से साधन संपन्न होने के बाद भी कुछ लोग मेट्रो रेलवे से ही ट्रैवल करेंगे. बीएमडब्ल्यू खड़ी है सामने, मर्सिडीज खड़ी है सामने, लेकिन जाएंगे मेट्रो रेलवे से. क्यों? क्योंकि उनके पास राकेश है. राहु बोलेगा आज हम लोग कुछ नया करते हैं. केतु बोलेगा चल मेरे पास तो पाँव है, चल चल के जाते, चल चल के गया स्टेशन तक. और शनि बोलेगा सुरंग से चलते, छुप छुप के, सीक्रेटिव. शनि तो हिडन चीजें करते हैं ना. 8 नंबर पूरा बंद है, ऊपर से नीचे तक पूरा घूम के. स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म का कॉम्बिनेशन. तो इस तरह से there's how numerology plays a very important role in our lives. We learn it or we don't learn it. We understand or we don't understand. वो तो अपना रोल प्ले करता ही है, because these are our planets, ग्रह नक्षत्र. So anyone with any more questions? So we are open for it. Okay, since we don't have any questions. Sorry, so we will get the recording and the notes for this classes as well. हाँ, we give you the YouTube recordings. We don't give any such PDF notes for the same because recordings में वो सारे रहते. The reason for not giving the notes is क्या होता है, फिर लोग recordings नहीं देखते. Notes में पूरा complete info नहीं रहता है. Because when the trainer is talking in the class, वो काफी सारी और भी चीजें हम share करते हैं जो PDF में नहीं होते हैं. So there's where students get misguided. क्योंकि वो अक्सर नोट्स ही खोलता है इंसान, रिकॉर्डिंग चलाने में थोड़ा समय लगता है तो वो अवॉइड हो जाती है. उसके लिए आपको एक डेस्क चाहिए प्रॉपरली, आप शांति से बैठे हो तब आप रिकॉर्डिंग्स चलाओगे.
तो रिकॉर्डिंग्स का पर्पस ये होता है कि नोट्स नहीं देने का पर्पस ये होता है, एक तो उसमें आधी इंफॉर्मेशन है, और रिकॉर्डिंग्स जब आप देखते हो तो आप ज्यादा कनेक्ट भी हो पाते हो, आपको यूं लगता है कि आप सामने बैठ के पढ़ाई कर रहे हो. Okay, thank So you. it makes a difference. We are always open for the flexibility of timings. It's not that कि मैं 12:30 बोल रही हूँ तो 12:30 ही रहेगा. वो हमारा एक स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस. वो जुपिटर का टाइम होता है, सूर्य और जुपिटर एक साथ आते हैं उस टाइम पे, इसलिए हम उस टाइम का लेते हैं. बट वी आर ऑलवेज वेरी फ्लेक्सिबल फॉर द टाइमिंग्स. कभी ऐसे होता है कि स्टूडेंट को कुछ है या ऐसा कुछ लिमिटेशन है, कभी ट्रेनर का भी कोई लिमिटेशन हो सकता है. सो इट्स नॉट दैट कि वी आर वेरी फिक्स्ड कि नहीं, जैसे होता है कि नहीं इसी टाइम पे ही होगा. इट्स नॉट दैट. We can change the timings according to mutual convenience also. Yeah, Yes? sorry, on the same topic of the flexibility, because in February, mid-February, I'm planning to travel for a month Okay, overseas, so I'm not sure whether I will continue for 2 months or not. So that is my concern. I So how to understand. solve that? I तो understand. उसका क्या कोई सॉल्यूशन होगा या? उसका सोल्यूशन ये होता है कि यू गेट द रिकॉर्डिंग्स. ऑफ कोर्स जो और स्टूडेंट्स रहेंगे क्लास में, विद देम द क्लास विल कंटिन्यू. यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स and later on if you come up with any queries or any doubts or any kind of obstacles, definitely I am there to help you out. Okay, thanks. Yes. Yeah. You also have a after support after the class of 1 month, because I understand after the class gets over, doubts सारे class over होने के बाद आते हैं, ज़्यादा doubts. So you have a after support of 1 month for the classes, and after that also you have my support of course. लेकिन उसके बाद फिर किसी को जरूरत नहीं पड़ती है, आपको इतना आ जाएगा उसके बाद, so you will be able to manage on your own. ठीक है. Thank you so much everyone for joining and adding so much of value to the class. It indeed was a great journey of 50 minutes. Thank you so much everyone. Radhe Radhe, Atma Namaste. Thank you, thanks, Radhe Radhe. Yeah. Thank you, Rashmi ji, for a wonderful session. Thank you so much, Geeta ji. Thank you so much.